Assalamu alaikum, this is Osama and today we're going to discuss about lathe machines. I'm going to take you step by step and hopefully you will learn everything. Let's start with the safety. When you first came into the workshop lab, I always taught you about the safety and that you have to respect the machine. So these are some points that you have to go through, that you always have to wear safety glasses, you have to avoid loose clothing, restrain long hair, never wear gloves, never wear shorts or sandals, remove necktie, and always have to stay alert. You have to follow all these things in order to make sure कि आप safe हैं while using the lathe machine. And safety is one of the most important things in this lab, so do not take it for granted. Anyway, we will move to the basics of lathe machine. And just to start, that the lathe machine is one of the most common machines found in today's modern machine shop, used primarily to produce cylindrical work pieces. Those who have already worked on lathe machine know कि हम जो work pieces बना रहे होते हैं, they're all cylindrical. And well, this there's an example कि यहाँ पे आपका turning tool होता है. There's a process going on जिसको हम turning कहते हैं. I will take you to the process and I will tell you कि turning होता क्या है. But you can see this is your cutting tool, and well, this is your workpiece, and these are the chips. Now I've already told you कि हम आपको safety glasses देते हैं, and you can realize why. Because इस lathe machine में जब भी आपका material remove होता है, it is in the form of chips. So this can go into your eye and can actually hurt you. इसलिए हम आपको lab coats और आपको safety glasses देते हैं to make sure that you're safe. Anyways, ये primarily use होती है to make cylindrical objects. Okay, different from a mill that it produces a round diameter on a part by rotating workpieces against a non-rotating single point tool. Okay, इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि lathe machine produces round diameter on part of a rotating workpiece. जो वर्क पीसेस हैं वो रोटेट कर रहे हैं against a non-rotating single point tool. Okay, so what we learn is कि for example this is workpiece, it's rotating, it's rotating in anti-clockwise direction, but this is your cutting tool, it's stationary. ये बिल्कुल स्टैटिक होगा और आपका वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होगा. और ये इसका एक पॉइंट कटिंग टूल जो है इसका मतलब ये है कि दिस इज प्रॉब्ली फॉर्म इन अ वे दैट दिस only there is one edge that performs the cutting. So this is very important that lathe machine का जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है और जो उसका कटिंग टूल है वो नॉन रोटेटिंग है. अच्छा, there's a difference between non rotating and static. Non rotating does not mean that this is static. You can see this arrow. That means that आपका जो कटिंग टूल है वो मूव कर सकता है बट ये रोटेट नहीं कर रहा. हाउएवर आपका वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा है. ठीक है. The lathe operated manually changes shape, size and finish of a workpiece with a variety of cutting tools. Now there's a lot of type of lathes. Okay, mainly तीन तरह की होती हैं और all these three are present in your university. So I'm gonna start with engine lathe. सबसे पहले तो ये है कि why this is called engine lathe. Basically lathe is also a Latin word, comes from the branches of trees. Okay, so what is engine? Engine means that जब शुरू में lathe invent हुई थी, we don't have anything to rotate its spindle or to rotate the workpiece. जिसने lathe पे काम किया है, they know what I'm talking about. That workpiece already rotates, and I just even told you कि इसमें workpiece rotate होता है. So what we did, we used engine to rotate the workpiece. That's why it's mostly used, and now we use the gear system. But the first time we used it to rotate was engine. So इसलिए हम इसको engine lathe कहते हैं. There are three type of lathes you may find in a machine shop today. The first one is engine lathe, and there's the original lathe is the engine lathe showed in figure 1. This is the typical engine lathe machine picture. This type of lathe position and holds a workpiece on a desired center line while the spindle rotates the workpiece. Okay, this is important. This type of lathe positions and holds a workpiece on a desired center line while the spindle rotates the workpiece. That is again कि आपका जो workpiece होगा वो अब आपको पता चल गया है कि वो किसके साथ attach होगा, spindle के साथ. Spindle is responsible कि आपका जो workpiece है वो rotate हो. Okay, so इतनी ये बात हमें पता चल गई. As the workpiece spins, the cutting tool gradually passes along the surface of the workpiece and a layer of material is removed. Okay, अब हमें एक और बात पता चल गई कि यहाँ पे आपका for example tool है and this is your workpiece.
Okay, so वर्कपीस spins, ये spin कर रहा है आपका वर्कपीस जो है, and your cutting tool gradually passes along the surface of the workpiece. और जो आपका tool है वो आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, like इसको depth of cut देते हैं and then you move it there. So these are the two axes of lathe machine. I will get to that later. But again you have to remember that इसकी कटिंग कैसे परफॉर्म हो रही है कि इसका वर्क पीस रोटेट कर रहा है और इसका जो कटिंग टूल है और दिस टूल है, this actually moves in this direction. It passes through the surface of the revolving workpiece and it removes the material of it. Okay, engine lathes are most frequently used manual lathes. This is an important word, that this is a manual lathe machine. That means this indicates that there are also automatic lathe machines or maybe CNC lathe machines. Okay, moving on to turret lathe and CNC lathe machines. Okay, the turret lathe holds multiple cutting tools that rotate into a position when needed. Each time the turret lathe is activated, the turret spins and positions the next tool in the sequence. It is then ready to carry out a different machining operation. Okay, in our lab there is a turret lathe machine available और उस पे आपने notice करना है कि it has this or this kind of thing or this kind of thing, actually this kind of thing. Okay, so you have to remember that this is basically a turret and this holds multiple cutting tools. Okay, so this indicates कि आपके पास, let me get this pen again. Okay, this indicates that you can hold more than one tool at turret at single time. Like इसमें एक से ज़्यादा cutting tool आ सकता है. जो आप लोगों ने जिस पे काम किया, that is engine lathe. Engine lathe पे you notice that उस पे एक ही cutting tool आ रहा है and you have to if you have to perform another function तो आपको वो cutting tool जो है वो remove करके एक और डालना पड़ेगा, क्योंकि in order to perform a machining operation. इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा. However, if you're using turret lathe machine तो आप इसमें ज़्यादा मशीनिंग कर सकते हैं at same time, इससे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है. Okay, because the turret holds multiple tools, the machinist does not have to change the tools each and every time a different tool is needed. Okay, that means कि अगर इसमें multiple tools आ रहे हैं तो आपको बार बार tool replace नहीं करना पड़ेगा और आपने कोई और operation करना है, perform करना है, so you simply switch to the other tool and then you can perform that operation. There are automated versions of these lathes that are computery controlled and are called CNC machining centers. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि there are manual lathe and there are CNC. So a lot of students are asking me, sir, कि ये manual क्यों कर रहे हैं, and I told them that there is an automated version as well. There is a CNC. CNC में क्या करना है, you just have to program every single thing and the lathe machine will understand that language and perform that work, and in the end आपको अपना desired workpiece मिल जाएगा. Okay. CNC lathe machines do look like this. Okay, wait a second. Yep, CNC lathe machines do look like this. ये आपकी लैब में available है in your CAD lab, CAD CAM lab actually. That's a CAM lab to be precise. उस लैब में आपकी ये वाली lathe machine available है. You can go. This is its panel. You program everything right here and आपकी जो lathe machine है वो सारा function perform करती है. If you look closely you can even see the chuck, so it's very similar. ये सब automated होता है. Today many shops use CNC lathes like in figure 1. A CNC lathe is a type of lathe that uses computer numerical controls to operate the lathe. These machines use single bit tooling. Okay, moving on to the engine lathe machine. This is the typical engine lathe machine. ये सारे इसके parts हैं. You have already gone through all of these, but let me remind you again, this part is headstock. Okay, like any body, if you think of it as a body, then you should know that this is head and obviously this is tailstock. Okay, so it's easy to remember that this comes in the end and this comes in the front of the lathe machine. Okay, this is bed, this is ways, and you can notice that ये tail stock जो है ये move करता है and what it moves on is ways. This is chuck, this is where your workpiece is holded. This is chuck is connected to headstock, and then there is feed gearbox. ठीक है, आप यहाँ से अपनी feed change करते हैं. Then there are these three bars. इसमें the first one is lead screw, the second one is feed screw, and then this one is used for the clutch. And you can see that this part is even indicated as a lead screw. This is emergency stop or brake.
and well, this is tool post, this is cross slide, and this is compound rest. All these three are actually placed on carriage. Okay, so these are the main parts of lathe machine. मैं एक दफा फिर repeat कर देता हूँ. This is headstock, this is tailstock, this part is tailstock, this part is headstock. Okay, this part is chuck, ये जो है this is chuck, this is bed. Okay, these are ways जो मैंने circle किया हुआ है. This is cross slide, this is tool post, and this is compound rest. Okay, this is tool post and this is compound rest and this is cross slide. और ये सब कुछ किसके ऊपर बेस हुआ हुआ है? ये जो आपका कैरेज पड़ा हुआ है इसको हम एप्रन भी कहते हैं. Okay, these are three bars. इसमें सबसे पहला लीड स्क्रू है, then there is feed screw और इस पे आपका क्लच माउंट हुआ होता है. एंड दिस इज योर फीड गियर बॉक्स, जिससे आप, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे गियर्स माउंटेड होते हैं, इसके अंदर हम आपको लैब में ओपन करके दिखाए भी हैं. दे आर ऑल स्पर गियर्स, और इसमें फीड गियर बॉक्स में आप क्या करें, आप अपनी फीड चेंज कर रहे होते हैं. okay okay, moving on. Now we will go through every single part and we will figure out कि वो क्या होता है, and I will try to provide you with the necessary details. Okay, well, let's start with the bed. Okay, the bed is the base and the backbone of the lathe. The bed is heavy, rigid frame made up of cast iron. Okay, this part is important, on which all other components of lathe are mounted or move. Okay, if you can notice that the bed is the main foundation. Okay, इस पे लेथ के सारे parts mounted हैं, so obviously it has to be made of a very good material and it is made up of cast iron. अब ये ऐसे ही नहीं डिसाइड होगा कि इट शुड बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन. इसके पीछे टर्मिनोलॉजी, इसके पीछे रीजन है. रीजन क्या है? दैट कास्ट आयरन इज अ काइंड ऑफ अ मटेरियल जिसमें आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस मटेरियल. ओके, एंड देयर इज नो वियर एंड टियर, नो वियर एंड टियर, एंड देयर आर नो वाइब्रेशंस. ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि अगर आपकी एक मशीन शॉप है, उसमें आपने 10 लेथ्स लगाई हुई हैं और 10 की 10 वाइब्रेट करें, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड. सही है, सो इट्स मटेरियल सिलेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इसलिए इसमें कोई वेयर एंड टियर भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इसमें मशीनिंग ऑपरेशंस यूज करने हैं. देन यू शुड नो कि किसी अच्छे मटेरियल की बनी हुई है. सो दीज आर द थ्री रीजंस कि जो कास्ट आयरन है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं है और कोई वेयर एंड टियर नहीं है, इसलिए ये यूज होता है फॉर द बेड. ओके, इस तरह यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ where the bed is. This is the bed. Okay, this is the main foundation. This is the main foundation of the lathe machine. Anyways, let's move on to the ways. The ways are parallel longitudinal rails located on the bed. There are two sets of inner ways and outer ways. The ways guide other components on the lathe such as tailstock. जब मैं ways आपको explain कर रहा था in the previous slide, I even told you कि tailstock ways के ऊपर move करता है. तो ways जो है वो क्या करते हैं, other components को guide करते हैं on the lathe. तो for example, अगर आपने tailstock को आगे लाना है या पीछे लेके जाना है, तो you will use the ways. Ways is basically a pathway for tailstock and other materials. Okay, then there is headstock. Headstock मैंने आपको बताया था बिल्कुल at the start of the lathe machine. I will take you again back and I will show you that this is headstock. Okay, this whole part is headstock जिसके साथ ये chuck mount हुआ है. And what is headstock, let's learn. Okay, the headstock is mounted on inner ways and provides the power to rotate the workpiece. Okay, this is important. हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हेडस्टॉक से हमें क्या मिल रही है, हमें पावर मिल रही है व्हाट टू रोटेट द वर्क पीस. हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं दैट वर्क पीस रोटेट्स. ठीक है, और जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था. लो लेट्स स्टिक विद दैट. और अब हमें क्या पता चल गया कि ये क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमें पता चला था कि स्पिंडल से रोटेट हो रहा है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड दैट आउट. और अब हमें पता चला है कि स्पिंडल क्यों रोटेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ हेडस्टॉक. हेडस्टॉक क्या कर रहा है? हेडस्टॉक ये पावर दे रहा है स्पिंडल को टू रोटेट एंड देन इट रोटेट्स द वर्क पीस. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो स्पिंडल. देयर वी गो. अब हमें ये भी श्योर हो गया कि यस वी वर राइट. इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो स्पिंडल एंड सेट ऑफ गियर्स. ओके, that rotate the spindle at a range of speeds that are operator adjustable. ओके, अब हमें क्या तीन चीजें पता चल गई. एक ये पता चल गया कि हेडस्टॉक के अंदर एक हॉलो स्पिंडल होती है. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी लर्नड. फिर हमें पता चल गया कि इसमें क्या होता है, सेट ऑफ गियर्स. एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये जो है ये काफी ज्यादा रेंज ऑफ स्पीड्स पे जा सकता है. मतलब हमें क्या पता चला कि इसकी जो आरपीएम है दैट इज एडजस्टेबल ऑपरेटर के हिसाब से. ओके,
सो अब हमें ये पता चल गया कि जो आपका वर्क पीस है वो कैसे रोटेट हो रहा है। आपका वर्क पीस रोटेट हो रहा है हेड स्टॉक की वजह से, क्योंकि उसके साथ आपका एक हॉलो स्पिंडल अटैच होता है, और हॉलो स्पिंडल को पावर कहाँ से मिल रही है? गियर से। मैंने जब भी आपको मशीन शॉप में देखा है या आप जब लर्न कर रहे थे, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जो गियर्स हैं एंड इवन बेल्ट्स, these are what power transmission devices. Okay, these are power transmission devices. Okay, uh, pardon my writing, but anyways I think this is understandable. तो gears और जो belts हैं, these are power and transmission devices, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था फीड गियर बॉक्स। ओके, सो इससे क्या करते हैं हम, इसकी जो आरपीएम है वो चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। Okay, moving on to spindle. Moving on to spindle and chuck. Okay, the spindle is mounted in a headstock and carries the work holding devices, that is chuck. अब हमें पता चल कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्पिंडल है वो किसके साथ माउंट हुई हुई है? हेडस्टॉक के साथ माउंट हुई है, एंड इट कैरीज चक। अब चक जो है वो स्पिंडल के साथ माउंट हुआ हुआ है, और चक मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर हमने वर्कपीस को रोटेट करना होता है। सो अब देखिए आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है, एक कनेक्शन समझ आ रहा है कि पहले आपके पास हेडस्टॉक था, ठीक है, उसके आगे आपके पास ऑब्वियसली स्पिंडल लगी हुई है, एंड देन यू हैव चक जिसके आगे आपने वर्क पीस होल्ड किया हुआ है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी जो है ये आपके जहन में आ रही है कि हेडस्टॉक था, फिर हमारे पास स्पिंडल आई, फिर हमारे पास चक आई, और उसके अंदर हमारा जो वर्क पीस है वो ग्रास्प हुआ हुआ है, और वर्क पीस इस तरह ग्रास्प नहीं हुआ, वो रोटेट का, ठीक है, इट इज रोटेटिंग। और रोटेट किस तरह कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे गियर सिस्टम लगा हुआ है, और गियर क्या कर रहे हैं? पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। और कैन इट रोटेट ऑन डिफरेंट स्पीड्स? यस, बिकॉज हम जो है इसकी आरपीएम भी चेंज कर सकते हैं ड्यू विद आवर डिजायरेबिलिटी। Okay, the chuck के बाद क्या है? The spindle has a hole extending through its length through which a longer bar stalk can be fed. The size of this hole determines the maximum diameter of the bar stalk that can be machined when the materials must feed through the spindle. Okay, अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इट्स यूजली फॉर द राउंड वर्क पीसेस, जो लेथ होती है इट्स यूजली फॉर द राउंड वर्क पीसेस। अब हमें पता चल गया, हमें ऑलरेडी ये भी पता था कि जो स्पिंडल होती है दैट इज हॉलो। अब हमें इसका फंक्शन पता चल गया। फंक्शन क्या पता चला कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास कोई बहुत बड़ा वर्क पीस आ गया, तो वर्क पीस जब आप होल्ड करते हो तो वो चक से गो थ्रू होके स्पिंडल के अंदर भी अटैच हो सकता है, बिकॉज इट इज हॉलो। और जितना स्पिंडल का डायमीटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कोई वर्क पीस अटैच करना है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये स्पिंडल के डायमीटर जितना होना चाहिए एटलीस्ट उससे बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इफ योर स्पिंडल हैज अ डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर, फॉर एग्जांपल, इतना थोड़ा होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल इफ यू इट्स हैज अ डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर, और आपका जो रॉड है उसका डायमीटर क्या है? 30 मिलीमीटर, तो आप इसके अंदर फिट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसलिए आपको पता चल गया है कि अगर कोई लार्जर वर्क पीस आ गया तो वो आपके चक से गो थ्रू करके स्पिंडल के अंदर फिक्स हो सकता है, और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? जितना स्पिंडल का डायमीटर है या उससे छोटा। ओके, द टेल स्टॉक इज लोकेटेड। अब हमने हेड स्टॉक से हट के हम दूसरे पॉइंट पे आके टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक याद करें कि लेथ मशीन के एंड पोर्शन पे था, और किसके ऊपर ये मूव कर रही थी टेल स्टॉक? वेज के ऊपर। Okay, we've already discussed that. Anyway, the tailstock is located opposite of headstock and sports the end of longer workpieces. The tailstock typically contains a center that holds the other end of the workpiece in place, but it can also hold a cutting tool by way of a drill chuck. Okay, अब हमें इसकी पोजीशन भी पता चल गई, अब हमें इसके फंक्शन भी पता चल गए। Let's dissect this. अच्छा, टेल स्टॉक इज लोकेटेड ऑपोजिट ऑफ हेड स्टॉक। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि हेड स्टॉक जो था वो लेथ मशीन के स्टार्ट में था, दिस वाज एट द स्टार्ट, और टेल स्टॉक किस पे है? एंड पे है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें पता चल गई। अब दूसरा काम ये कर रहा है कि एंड ऑफ द लॉन्गर वर्क पीसेस। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेट्स मूव बैक। अच्छा, अब आप यहाँ पे लेट मी इवन अरेज ऑल दिस। ओके, अब लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन क्योंकि दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे रियलाइज करें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वर्क पीस है और इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी लेंथ में जब आप इस पे मशीनिंग करेंगे तो देयर इज अ चांस कि ये इस तरह वाइब्रेट हो और मशीनिंग ऑपरेशंस खराब हो। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या करती है? इसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके,
ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बताया था ना कि ये हेड स्टॉक है, यहाँ पे आपका वर्क पीस आ गया और यहाँ पे आपका वर्क पीस एंड हुआ। तो टेल स्टॉक का क्या काम है, टेल स्टॉक यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टेल स्टॉक का एक और भी काम है, एक और का काम है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ड्रिलिंग ऑपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था होल करने को होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस टेल स्टॉक के अंदर ड्रिल चक और ड्रिल बिट को फिक्स करूंगा। मैं ऑलरेडी आपको ड्रिल चक और ड्रिल बिट जो है वो फिटिंग शॉप में बता चुका हूँ, बट जो अभी तक फिटिंग शॉप में नहीं पहुंचे दे विल लर्न दैट। एनीवेज, जो टेल स्टॉक है उससे वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ आप यहाँ पे ड्रिल बिट पे भी ड्रिल बिट लगा के आप इसके अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ड्रिल बिट एंड दिस इज योर ड्रिल चक, और यहाँ से आप इसके अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करके होल क्रिएट कर सकते हैं इन योर वर्क पीस। तो टेल स्टॉक के हमें कितने फंक्शंस पता चल गए, एक तो ये लॉन्गर वर्क पीसेस को सपोर्ट देता है, दूसरा ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन। Okay, it can also hold a cutting tool by way of drill chuck. Okay, okay, let's move on to carriage. अच्छा, carriage के बारे में मैंने आपको already बताया था। Carriage is a section of a lathe that slides along the ways and supports the cross slide. मैंने आपको बताया था इस पे cross slide होती है, compound rest होता है, और एक और चीज होती है which is tool post। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें किस पे बेस हुई हुई है, ये सारी की सारी कैरेज पे मूव हुई है। और कैरेज मैंने आपको दिखाया था, इसको एप्रन भी कहते हैं। कैरेज का एक और वर्ड जो जिससे ये जाना जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज एप्रन। ओके, a carriage is a section of lathe that slides along the weights and supports the cross slide। okay, इसके ऊपर cross slide and a cutting tool, क्योंकि obviously आपका जो टूल कटिंग टूल होता है वो टूल पोस्ट के अंदर फिक्स होता है, so you would know कि कैरेज जो है वो कटिंग टूल को भी सपोर्ट करता है। The carriage contains a compound rest which permits the angular adjustment of cutting tool। ओके, अब हमें ये बात पता चल गई कि अगर हमने किसी एंगल पे कटिंग करनी है तो हम किस चीज को यूज कर सकते हैं, कंपाउंड रेस्ट को। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टर्निंग करनी है, टर्निंग इज बेसिकली, मैं इस पे बाद पे आता हूँ डिटेल में, बट टर्निंग में हम ना डायमीटर को कम कर रहे होते हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये बार है और इसका डायमीटर कम करके मैंने ये बार बनानी है, तो दिस कटिंग इज नॉट ऑन एंगल, दिस इज स्ट्रेट। बट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बार है और मैंने ये बार बनानी है। ओके, दिस इज कटिंग ऑन सम एंगल, सो ये हम किससे परफॉर्म कर सकते हैं, compound rest से। okay, the compound rest can rotate with the respect of cross slide which permits the further positioning of the tool being used। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्रॉस स्लाइड का नाम बता चुका था, बट इससे आपको ये भी पता चल गया कि कंपाउंड और क्रॉस स्लाइड दोनों यूज हो सकते हैं फॉर द कटिंग ऑफ मटेरियल एट सम एंगल। देन देयर इज लीड स्क्रू। लीड स्क्रू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था दैट देयर वर 3 स्क्रूज इन द लेथ मशीन, 3 बार्स एट द लेथ मशीन, जिसपे सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे था दैट वाज लीड स्क्रू, दूसरे नंबर पे था वो फीड स्क्रू था। ठीक है, लीड स्क्रू की आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर थ्रेड्स बने होंगे। ठीक है, इस पे जो थ्रेड्स बने होते हैं दे आर एक्मी थ्रेड्स एंड देयर एंगल इज about 29 degrees। okay, so what lead screw does is it powers the carriage assembly। अब carriage assembly को कैसे पावर मिल रही है, through lead screw। okay, the lead screw is a large threaded rod that is located below and parallel to the ways। पैरेलल का क्या मतलब है कि वेज यहाँ पे ऊपर से जहाँ पे टेल स्टॉक मूव कर रहा था, तो लीड स्क्रू भी इसके पैरेलल है, बट इट इज बिलो दैट वेज पार्ट, उससे नीचे लगा हुआ है। आई विल गो बैक टू द स्लाइड एंड आई विल शो यू दैट अगेन, बट आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, आई विल show you that again। this is basically lead screw। ठीक है, this is base, these both are parallel and this is below ways। अच्छा, अब एक और बात वहां पे लगी हुई थी दैट लीड स्क्रू पावर्स द कैरेज। अब ये कैरेज देख रहे हैं, ये कैरेज इस डायरेक्शन में मूव करता है या इस डायरेक्शन में मूव करता है, और वो मूव किस पे कर रहा है, इस पे, लीड स्क्रू पे। दैट वाज द लाइन वाज रिटन दैट लीड स्क्रू पावर्स द कैरेज, यानी जो कैरेज की मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू द लीड स्क्रू। ओके, ओके, मूविंग ऑन टू द टूलिंग। अच्छा, अब हमारे पास होल्डिंग टूल्स आ गए। होल्डिंग टूल्स में एक बात तो मैं आपको बता चुका था जो कि सबसे कॉमन थी कि हम जो है वो चक जो है हमारा एक होल्डिंग टूल है। चक के अलावा हमारे पास एक और होल्डिंग टूल है दैट इज कॉलेट। कॉलेट की डिटेल्स हम वर्टिकल मिलिंग मशीन में बताऊंगा मैं, जब हम वर्टिकल मिलिंग मशीन यूज करेंगे।
दैट इज मिलिंग मशीन। द वर्टिकल मिलिंग मशीन में मैं आपको कॉलेट बताऊंगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर होल्डिंग मटीरियल्स, और जिस तरह नाम कह रहा है कॉलेट्स, तो ये एक कॉलर सा बना लेते हैं। दिस इज वेयर वी हैव कॉलेट। यू कैन सी दैट यहाँ पे काफी छोटे डायमीटर के जो वर्क पीसेस होते हैं ना, हम उनको यूज वर्क पीसेस या टूल्स को होल्ड करने के लिए ना हम कॉलेट यूज करते हैं। इट यूज फॉर होल्डिंग ऑब्वियसली टूल्स, लेकिन काफी छोटे डायमीटर वाले। ओके, और ये आप जिस तरह इसकी शेप है, यू वुड रियलाइज दैट इट क्रिएट्स अ कॉलर अगेंस्ट द वर्क टूल। okay, so इसलिए that's why its name is collet. It's from the collar, like you've known the collar part. Okay, so ये एक टूल जिसको इसने होल्ड करना होता है, इसके अराउंड एक कॉलर क्रिएट कर लेता है। देन देयर इज ड्रिल चक। ड्रिल चक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी शोन यू बेंच ड्रिल मशीन, और उसमें आपने ये चीज देखी है। इसके अंदर यहाँ पे ड्रिल बिट जो है फिक्स होता है, और यहाँ से हम इसको टाइट कर रहे होते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये चक है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ड्रिल बिट होल्ड होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ड्रिल चक। ओके, ओके, एंड दिस इज मोर स्टेपर। बेसिकली दिस इज आल्सो स्लीव। जिन लेथ मशीन यूज की है या जिन्होंने उस पर काम किया है, दे हैव ऑलरेडी सीन दिस। दिस इज फॉर्म ऑफ स्लीव। इस ड्रिल चक के पीछे ये फिक्स होता है, और दिस प्रोवाइड्स अ होल्डिंग। इट्स आल्सो अ होल्डिंग टूल लाइक collet and drill chuck. Then these are some टूलिंग ऑपरेशंस, और ये आपके पास सेंट्रल ड्रिल है। जी, सेंट्रल ड्रिल हम जब भी ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो हम ड्रिल करते हैं दैट इज सेंट्रल ड्रिल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जो है इट इज यूज फॉर कीप होल्स एक्यूरेटली पोजीशंड। एक्यूरेटली पोजीशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ओके, आई एम गोना ड्रॉ इट अगेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वर्क पीस है, और मैंने इसका एक होल यहाँ पे करना है, और मैंने जब होल करना है तो यहाँ पे अगर मैं फॉरन से ट्विस्ट ड्रिल बिट यूज करूंगा, तो आपका जो होल है वो मिस पोजीशन हो सकता है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, एक तो ये पार्ट है कि हम इस पे सेंटर पंच यूज करके इसके अंदर इस तरह का ग्रूव बना दिया, एंड देन होप के यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल बिट फिट हो जाए। बट द रियल थिंग इज के अगर आपने एक्यूरेटली होल्स क्रिएट करने हो या मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने, सो यू ऑलवेज गो फॉर द रिकमेंडेड प्रोसीजर, एंड दैट इज दैट आप इसको सबसे पहले सेंट्रल ड्रिल यूज करें, ताकि आपका होल पोजीशन सही तरह हो जाए। सेंट्रल ड्रिल से क्या होगा कि आपका फॉर एग्जांपल इस तरह का इतना सा होल हो जाएगा, और वो बिल्कुल सही पोजीशन हो जाएगा। देन यू विल यूज द ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, उस ट्विस्ट ड्रिल से क्या होगा कि आपका होल जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, और वो एक्यूरेट होगा। अगर आपने यहाँ पे होल करना है तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, इट विल बी राइट हेयर वेयर यू desired it. Then there is reamer. Again, remember the drilling operation never creates very finished holes, or जो very accurate या good surface finish. They always give you very rough surface finish. Okay, so this is why we use reamers, a tool for widening or shaping holes or precise hole size. तो basically ये surface finish के लिए होता है। जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपने उसका साइज एक्यूरेट करना हो, या आपने उसका साइज मजीद इंक्रीज करना हो, वाइडन करना हो, बहुत ज़्यादा डायमीटर के लिए नहीं, बस बेसिकली जब आप होल करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के होल्स कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक यू सी दिस इज अ रफ सरफेस। लेकिन जब आप इसमें रीमर यू मूव कर चुके होते हैं, देन यू गेट द स्ट्रेट लाइंस, लाइक योर होल इज फिनिश्ड। ओके, देन देयर इज बोरिंग बार फॉर बोरिंग होल्स। बोरिंग मैंने आपको बता दिया था एक ऑलरेडी। ये बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है कि ऑलरेडी ड्रिल्ड होल्स का अगर आपने डायमीटर इंक्रीज करना हो, देन यू डू द ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड बोरिंग। ये मैंने आपको डिटेल्स से बताया था इन फिटिंग शॉप, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई थी देयर। एंड नाउ वी हैव लेथ टूल बिट्स। Okay, we will go through facing, turning, threading, grooving one by one, and I will explain you what it is. ओके, मूविंग ऑन टू टूल पोस्ट। अच्छा, टूल पोस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टूल पोस्ट कहाँ पे होती है, कैरेज, क्रॉस लाइट, ओके, एंड देन देयर इज कंपाउंड रेस्ट, एंड देन आखिरी ये सारी चीजें जो है ना, क्रॉस लाइट, कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट, ये सारी की सारी जो है वो कैरेज के ऊपर पोजीशन होती है। ओके, सो टूल पोस्ट इज आल्सो देयर ऑन कैरेज। टूल होल्डर स्लाइड डाउन ऑन टू टूल पोस्ट, ट्विस्ट हैंडल टू लॉक एंड रिलीज द टूल होल्डर्स। बेसिकली ये टूल होल्डिंग के लिए यूज होता है, एंड यू कैन यूज दिस टू रिमूव द टूल पोस्ट फ्रॉम द कैरेज। तो ये बेसिकली टूल पोस्ट या टूल होल्डर के बारे में आपको बताया गया, हाउ इट लुक्स लाइक एंड वेदर यू कैन रिमूव इट और नॉट।
Then there is work holding devices. We will start with the three jar chuck. आपने जो वर्क पीस बनाया है उसमें भी थ्री jar chuck ही यूज होता है, and it will look like this. Actually it looks like this, but this is also three jar chuck. And you have a chuck key wrench जिसे आप इसको open और close करते हैं. This key goes right there in this hole, and then you एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको रोटेट करते हैं देन दीज जॉज आर वाइडन्ड, और जब आप इसको क्लोज क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं दीज जॉज गॉट टाइट, एंड ये आपके वर्कपीस को होल्ड कर लेता है. ओके, द जॉज ओपन एंड क्लोज टुगेदर ऑटोमेटिकली सेंटरिंग द वर्कपीस. This is the quality of a three jaw chuck. It automatically centers the workpiece क्योंकि ये तीनों jaws जो हैं ये simultaneously move कर रहे होते हैं. When you use this, so these all jaws move simultaneously. इसलिए जब आप यूज कर रहे होते हैं इनको जब टाइट करते हैं तो आपका जो वर्क पीस होता है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है. Okay, this kind of chuck usually has two-piece reversible set of jars or a complete set. One set holds the larger work while the other set holds small rings or small. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक ये होल है, इसमें जब आप ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो all these jars will go away, और इसमें आप बड़े से बड़ा डायमीटर जो है वो होल्ड कर सकते हैं. ऑल्दो दीज होल्स इनके अंदर आप स्मॉल डायमीटर्स वाले वर्क पीसेस भी होल्ड कर सकते हैं. Okay, the three jar universal chucks when in good shape center work according to accurately within 0.002 or 0.003. ये इसकी accuracy है, कि इस accuracy तक ये इसको centrally align कर लेते हैं work pieces को. और कभी भी किसी भी अच्छे machining operation के लिए especially जो center जो round work pieces होते हैं उनके लिए आपका work piece center में होना बहुत जरूरी है. Okay, then moving to four jar chuck. This is important because you have not worked on four jar chuck, so you should at least know okay, what is the difference between four jar chuck and difference between three jar chuck, and why we are not using four jar chuck. The four jaw independent chuck has four jaws and each must be moved separately with a chuck wrench. ओके एक बात तो हमें पता चल गई कि ये इंडिपेंडेंट है एंड इट हैज फोर जॉज. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि मैंने आपको प्रीवियसली उसमें बताया था कि सिर्फ एक होल होगा, हम उसी के अंदर रेंच को मूव करेंगे तो हमारे तीनों जॉज मूव करेंगे. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें क्या है, आपका हर जॉ जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपने हर जॉ को अलहदा से मूव करना है. एंड इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली वर्क पीस को सेंट्रली अलाइन नहीं करेगा. ठीक है, इसका इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका फायदा भी है. डिसएडवांटेज ये है कि आपको अगर सेंट्रली अलाइन करना है किसी वर्क पीस को देन यू विल हैव टू यूज डिजिटल इंडिकेटर और सम अदर डिवाइस. ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन होल्ड अ वर्क दैट इज नॉट परफेक्टली राउंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्क पीस ऐसा है कि जो कि परफेक्टली राउंड शेप का नहीं है या इसी तरह की जिब्रिश शेप का है, so you can use this to actually grasp this kind of workpiece. Okay, it may be used to hold work that is round, square, rectangular or irregular in shape. अब देखें इसने क्या किया, इसने आपको लग्जरी दे दी कि आप किसी भी तरह का वर्क पीस जो है इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं. दिस चक इज मोर एक्यूरेट सिंस द वर्क कैन बी सेंटर विद द यूज ऑफ डायल इंडिकेटर. अब ये एक्यूरेट है उससे क्योंकि आप इसके अंदर एक और इंस्ट्रूमेंट डायल इंडिकेटर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होता है, वो यूज करके आप इसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं. ठीक है, द jaws of this kind of chuck are solid reversible obviously like I've told you कि ये इसको रिवर्स करके इस तरह के jaws जो हैं ये भी बन सकते हैं and they can be taken out and put on again. आप इसको रिमूव कर सकते हैं इसके jaws को and then you can put it again in the opposite direction. Or there is a two-piece reversible jaw. They have steps so that different size of work can be held and there are also four jaws self-centering chuck available. ओके अब अच्छा, अब इसमें ये चीज भी है कि अब इसमें भी देखें कि आपको एक ये होल मिल रहा है, ये होल मिल रहा है, ये होल मिल रहा है. इसका मतलब है कि आप डिफरेंट डायमीटर के वर्क पीसेस इनमें होल्ड कर सकते हैं. एंड अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चारों जॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट दैट इज नॉट इंटायरली ट्रू. मतलब आपको फोर जॉज के अंदर सेल्फ सेंटरिंग चक्स में मिल रहे हैं. सेल्फ सेंटरिंग चक्स वो हैं जो कि हम थ्री जॉज में यूज कर रहे थे. थ्री जॉज में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक होल था जिसके अंदर हम रेंच को मूव करते थे और हमारे तीनों जॉज जो हैं वो क्लोज एंड ओपन होते थे, जिसको हम कहते थे कि सेल्फ शटरिंग. लाइक जब तीनों क्लोज हो रहे हैं तो अपने वर्क पीस को ये खुद ब खुद सेंटर में ले आते हैं. फोर जॉज चक जो है वो मैंने कहा था इंडिपेंडेंट होते हैं, बट देन अगेन फोर जॉज में एक सेल्फ शटरिंग चक भी अवेलेबल है. तो इसलिए व्हेन आई आस्क यू अ डिफरेंस बिटवीन देम, सो यू कैन नॉट से कि फोर जॉज चक्स आर नॉट सेल्फ शटरिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि फोर जॉज चक है तो इट विल नेवर बी सेल्फ शटरिंग. देयर आर फोर जॉज चक्स दैट आर सेल्फ शटरिंग एज वेल.
मूविंग ऑन टू कटिंग, देयर बेसिक लेथ मेथोडोलॉजी में हमने सबसे पहले फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग, टेपर टर्निंग, सेंटर ड्रिलिंग, ग्रूविंग, parting, hole tapping, knurling and threading. We will go through each of these और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या operations है और इनमें क्या होता है. तो let's see the names then. Facing. Facing से आपको क्या पता चल रहा है? It has to do something with the face of a workpiece. ठीक है ना? For example ये आपका workpiece है. This is the face part. So you realize कि इससे इसका कोई ना कोई function face से होगा. Turning, I've already told you कि ये जो आपका diameter कम करने के लिए होता है. Boring, आपको बता चुका हूँ कि already drilled hole का अगर आपने diameter increase करना है, you do the boring process. Taper turning. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था टर्निंग जो होता है वो डायमीटर कम करने को होता है. टेपर टर्निंग एंगल पे डायमीटर को कम करने के लिए होता है. मैं आपको ये ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ बट आई एम गोना गिव यू दैट एग्जांपल अगेन. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये वर्क पीस है, आपने इसका डायमीटर कम किया और आपने इसका डायमीटर कम करके ये बना दिया, ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसका डायमीटर कम करना है किसी एंगल पे, फॉर एग्जांपल इस तरह करना है डायमीटर कम, सो इस ये क्या है, ये दिस इज टेपर टर्निंग. ओके, सो दिस इज टेपर टर्निंग. There is center drilling, there is parting and grooving. Okay, grooving and parting. अब आप ये दोनों हाइफन से कनेक्ट हुए हैं, so you should know कि इनका कोई ना कोई आपस में कनेक्शन as well है. Then there is tapping. फिटिंग शॉप में आपने टैपिंग की भी है. होल टैपिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ होल एंड आपने इसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स बनाए हैं, तो दिस इज टैपिंग. नर्लिंग प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिटिंग में भी बता चुका हूँ, लेथ में भी बता चुका हूँ. इट्स अ प्रोसेस दैट यू डू फॉर अ गुड हैंड ग्रिप. अभी इसको डिटेल से हम डिस्कस भी करते हैं. देन देयर इज थ्रेडिंग. थ्रेडिंग एक आउटसाइड डायमीटर थ्रेडिंग है. दैट मींस कि आपने जो थ्रेड या टीथ्स बनाए हैं दैट इज ऑन आउटसाइड diameter, okay, but when you do that on the inside of the diameter, then that is what? Tapping. So we should also know that ये जो threading है इसका whole tapping के साथ connection है. These are two interconnected. These are the same things. एक outer diameter के लिए और एक internal diameter के लिए. Okay, facing. What is facing? Let's start with the facing. I've already told you that with the name हम suggest कर सकते हैं it has something to do with the face of the workpiece. Facing is the machining of a flat surface on the end or face of a workpiece, and facing is sometimes used to remove uneven, rough surfaces and burrs from a workpiece. जब भी आपको वर्कपीस मिलता है लेथ में, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज फेसिंग. अब आपको वर्कपीस मिल गया, अब आपने इसमें मशीनिंग ऑपरेशंस करने हैं, तो फेसिंग का क्या काम है? फेसिंग आपका बेसिकली अनइवन सर्फेसेस को आपके इस फेस से अनइवन सर्फेसेस या बर्स को रिमूव करता है. और इन अ वे अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर किसी वर्कपीस की लेंथ कम करनी है तो हम क्या करते हैं? फेसिंग प्रोसेस करते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद इमेजिन करें, लाइक विजुअलाइज करें कि फॉर एग्जांपल ये आपका वर्क पीस है, ठीक है. अब मैंने इसके फेस में से इसके जो सामने इसके बर्स हैं या अनइवन सरफेस है, या अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं, दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर वर्क पीस. सही है, दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर वर्क पीस. अगर ये जो है ये थोड़ा सा अनइवन है, ओके, दिस इज अनइवन, और अगर मैंने ये चीज रिमूव किया फ्रॉम फेसिंग तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इसकी लेंथ जो है वो पहले इतनी थी और आफ्टर रिमूवल इसकी लेंथ इतनी हो गई है, तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है. सो इन अ वे फेसिंग इज व्हाट? ऑपरेशन टू रिमूव या डिक्रीज लेंथ, बट इट इज बेसिकली डन टू रिमूव रफ सर्फेसेस और बर्स फ्रॉम द फेस ऑफ अ वर्क पीस. Then there is turning. Already मैं आपको बता चुका हूँ turning क्या, it is a machining of external surfaces or round parts. During turning, a part is held at one or both ends while it rotates against a single point cutting tool. ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्ड एट वन और बोथ एंड्स. अब वन एंड का क्या मतलब है कि ये हेड स्टॉक में है, बोथ एंड्स का क्या मतलब है कि ट्रेल स्टॉक से भी इसको सपोर्ट मिली हुई है. ठीक है ना, यू सी योर थिंग्स आर मेकिंग सेंस. लाइक टर्निंग प्रोसेस वो कह रहा है कि आपका जो वर्क पीस है वो शायद एक या दो पार्ट्स में होल्ड हुआ है. यू शुड रिमेंबर बाय दिस बाय नाउ, और आपके फौरन दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बोथ हैंड्स का मतलब ये है कि दूसरा एंड कहाँ पे है? टेल स्टॉक में. व्हाइल इट रोटेट्स, जिस तरह आपका वर्कपीस रोटेट करता है अगेंस्ट व्हाट? अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि आपका जो कटिंग टूल होता है वो यूजुअली इस शेप का होता है, और क्योंकि इसका एक एज कटिंग कर रहा होता है, सो बेसिकली वो क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. द कटिंग एज इज फोर्स्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द वर्कपीस. आपकी जो कटिंग एज है वो क्या कर रहा है? आप अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द वर्कपीस
तो आपका जो वर्क पीस है वो ये फॉर एग्जांपल ये वर्क पीस और आपका ये कटिंग टूल है, तो आप इसको अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और आपकी क्या होती है, मटेरियल जो है वो रिमूव होता है. कटिंग मेटल एज द टूल इज फेड अलोंग द surface. Now this is parting. Well, parting is also called cutting off. Parting will be the last operation that you will perform in lathe. क्योंकि for example मैं आपको explain कर देता हूँ, पहले parting generally होता है कि then we will go through what is written in this slide. अब for example this is your chuck और आपने ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है जो आपने चक के ऊपर होल्ड किया. अब इस वर्क पीस के ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किया. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जी टेपर टर्निंग कर दी है, ठीक है, आपने इसके अंदर एक होल भी क्रिएट कर दिया है, आपने इसके अंदर थ्रेडिंग भी कर दी है, आपने काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म कर दी. अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए थी फॉर एग्जांपल ये वर्क पीस जो है ना ये यहाँ तक जा रहा है, मैंने आपको बताया ना पीछे स्पिंडल लगी होती है तो चक के आगे स्पिंडल तक भी जा सकते हैं. तो वर्क पीस आपका जो है ये है कितना, 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ है फॉर एग्जाम्पल, और आपको जो लेंथ चाहिए ना वो यहाँ तक चाहिए विच इज़ व्हाट मे बी 70 मिलीमीटर, ठीक है. अब आपने सारे मशीनिंग ऑपरेशंस कर लिए. अब आपने क्या करना है, आपका आखिरी ऑपरेशन है पार्टिंग. कहते हैं ना दे पार्ट वेज, लाइक डिफरेंट दे पार्ट वेज या अलहदा हो गए, सही है. सो व्हाट ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये बाकी सारे पार्ट्स में से इसको जो आपका डिजायर्ड लेंथ है इसको रिमूव करने को हम पार्टिंग कहते हैं. दिस विल बी द लास्ट स्टेप दैट यू डू, यू रिमूव योर डिजायर्ड लेंथ फ्रॉम द होल वर्क पीस. तो आपको जो है वो फिर एक वर्क पीस मिल जाएगा इतना जो कि इसकी 70 मिलीमीटर लेंथ होगी. मतलब हाइपोथेटिकली या फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये 100 मिलीमीटर का है, हम इसकी पार्टिंग करते हैं 30 मिलीमीटर कट ऑफ कर देते हैं, हमें 70 मिलीमीटर क्योंकि चाहिए था और इसी के ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किया तो हम इसको रिमूव करके इसको रख लेते हैं. बाकी दैट पार्ट इज बेसिकली आवर वेस्ट, ठीक है. पार्टिंग इज आल्सो कॉल्ड कटिंग ऑफ. यू सी यू गेटिंग माय पॉइंट, लाइक आपने कट ऑफ कर दिया एंड इट इन्वॉल्व सेपरेटिंग अ कंप्लीट पीस फ्रॉम द स्टॉक. स्टॉक क्या है, लार्जर बार, और पीस क्या है जिसपे आपने ऑपरेशंस किए हैं जो कि आपका डिजायरेबल लेंथ है. पार्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन ruin द होल जॉब इफ द पार्ट इज नॉट क्लियरली रिमूव्ड. मैंने आपको बताया दिस इज द एंड थिंग. अगर आपने सारे मशीनिंग ऑपरेशंस बिल्कुल एक्यूरेट किए और आपकी पार्टिंग सही नहीं है देन यू कैन क्लियरली ruin योर होल जॉब. Okay, now move to outside diameter grooving. Okay, basically grooving क्या होता है, grooving होता है खड्डा, ठीक है. in Urdu is basically खड्डा, या फिर you can remove the length at a specific area. For example एक मेरे पास ये बार है और मैंने इस पे ग्रूविंग ऑपरेशन परफॉर्म किया. ग्रूविंग ऑपरेशन का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज कर दी और ये जो मेरे पास चीज है दैट इज ग्रूव. ओके, एक स्पेसिफिक एरिया में या उसकी जो लेंथ है वो नॉच सा क्रिएट कर दिया मैंने, दैट इज ग्रूव, ठीक है. और आउटसाइड डायमीटर ग्रूविंग इसका मतलब है कि बाहर के आउटसाइड डायमीटर पे किया. इनसाइड डायमीटर ग्रूविंग भी होती है. आउटसाइड grooving is a simple machining process during which a cutting tool is plunged into a workpiece to create a groove or a channel. There are essentially three types of groove. Okay, the first one is square cut, the second one is round cut, and the third one is वी कट. अच्छा, विद द नेम स्क्वायर कट. अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ. फर्स्ट वन उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ग्रूव होता है वो होता है स्क्वायर कट, ठीक है. तो एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बार है, इसमें ये मैंने ग्रूव क्रिएट किया, ठीक है. अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या है, स्क्वायर कट. इसी को अगर मैं इस तरह की फॉर्म में क्रिएट कर लूं और लेट मी डू दिस अगेन. इसी को अगर मैं इस तरह तो नहीं, लेट मी डू दिस अगेन. अगर इसको मैं वेयर इज द मार्कर, ओके लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. ओके, अगर मैं इसको इस तरह क्रिएट कर दूं, you can see this is round, this was square, this is round, it becomes round cut grooves. और अगर इसी को मैं V फॉर्म में क्रिएट कर दूं, what is V फॉर्म, मैं V क्रिएट कर रहा हूं, simple as that. Okay, this is not a very good V but you get the idea. Okay, like अगर यहाँ पे round है, ये this is round, okay, this is purely round, and this is V, this is like this.
ओके दिस इज लाइक दिस, अगर ये मैं इस तरह क्रिएट कर दूं देन दैट इज वी ग्रूव, सही है। सो आई एम गोना इवन ड्रॉ दिस अबव ऑफ दिस, ये जो है ये स्क्वायर कट होता है, दिस इज राउंड ग्रूव एंड दिस इज वी ग्रूव। तो अगर आपको ग्रूव है वो उसकी शेप ऐसी है देन दैट इज वी ग्रूव, अगर उसकी शेप राउंड है दैट इज राउंड ग्रूव, और अगर उसकी शेप स्क्वायर है देन दैट इज स्क्वायर कट ग्रूव, बट ऑल दीज थ्री आर ग्रूव्स। ओके सो आप जो वर्क पीस पे करेंगे दैट इज यूजली स्क्वायर कट ग्रूव्स। Anyways, moving to threading, outside diameter threading, or that OD means outside diameter. Okay, outside diameter threading. Threading I've already told you. Threading. Let me remove all this ink first. Okay, threading I've already told you that threading जो होती है that is basically outside diameter के ऊपर आपने, outside threading means कि आपने इसके ऊपर teeth बनाया. For example, this is a bar. दिस इज अ राउंड बार, इसका ये मैं क्रॉस सेक्शनल साइड व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आपने इसके ऊपर टीथ्स बनाए हैं देन योर बार विल बिकम्स लाइक दिस। ओके दिस इज योर टीथ, इस तरह लीड स्क्रू होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी थ्रेडिंग हुई हुई है। Then this process of making teeth on the outside diameter is what? Outside threading. Is a special turning operation that uses a single point cutting tool to cut threads down at the length of a workpiece. The lathe has the ability to cut many different types of threads, with most common being 60 angle thread. लेथ मशीन पे आप थ्रेडिंग करते हैं और आपके वर्कपीस पे भी आपने थ्रेडिंग करनी है, बट यूजली जो हम थ्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज द एंगल ऑफ व्हाट 60 डिग्रीज। Now this is knurling. Knurling I've already told you is basically a process which is done to create a hand grip. इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है knurling से, ओके या इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है। दिस इज आपने यूजली पैटर्न जो है ये आपने वहाँ उस उन चीज़ों पे देखा होगा जहाँ पे आपका जहाँ पे आपने ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जिस जगह पे भी आपने मशीन की जहाँ पे आप बंदे ने आप ग्रिप करना होता है उस पे उस जगह पे इस तरह का पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। Knurling is the process of forming a horizontal or a diamond-shaped notches or teeth on the circumference of the work to provide the gripping surface. ठीक है, ये सारे patterns हैं जो कि आप फॉर्म करते हो किसी भी rod पे to provide the essential gripping. इस तरह का knurling tool होता है, this is the knurling tool. उसके ऊपर ये पैटर्न्स यहाँ पे बने होते हैं, दिस इज विल बी वन ऑफ आल्सो वन ऑफ द ऑपरेशंस जो आप इंशाल्लाह अपने वर्कपीस पे परफॉर्म करेंगे। एनीवे मूविंग ऑन टू टेपर टर्निंग। अब टर्निंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, और मैं टेपर टर्निंग भी आपको बता चुका हूँ, बट आई एम गोना रिपीट अगेन। टर्निंग होता है डायमीटर को कम करना, ठीक है। मेरे पास ये डायमीटर था, मैंने इस डायमीटर को कम कर दिया। इसी तरह अगर मैं डायमीटर को किसी एंगल पे कम कर रहा हूँ दैट इज व्हाट taper turning, that is taper turning, okay, that is taper turning। किसी एंगल पे डायमीटर को कम करना is what taper turning in basically layman language, but its real example real definition is tapering is an increase or decrease in a diameter at a uniform rate। okay, there are 5 principal methods of machining tapers on the lathe। अब आप taper turning कर कैसे कर सकते हैं या tapers कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लेथ में? आप कंपाउंड रेस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप टेल स्टॉक भी यूज कर सकते हैं, आप टेपर अटैचमेंट भी यूज कर सकते हैं, आप टूल बिट भी यूज कर सकते हैं, आप रीमर भी यूज कर सकते हैं, ओके, रीमिंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। इन पांचों प्रोसेसेस को आप यूज करके टेपर सरफेस बना सकते हैं, बट अगेन इनके कुछ एडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं एंड देन यू हैव सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव टू डू दिस। आप लोग जो थ्रेडिंग करेंगे दैट विल बी फ्रॉम कंपाउंड रेस्ट प्रॉब्ली, सो बाकी सारे भी आप देख लें और उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देख लें। जो कंपाउंड रेस्ट है उसके लिए क्या है, द लेंथ ऑफ द टेपर इज लिमिटेड, ओके, आप लिमिटेड लेंथ के लिए टेपर कर सकते हैं, बट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स आप इस पे बना सकते हैं। हाउएवर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको टेपर एंगल चाहिए होगा, आपने किस एंगल पे टेपरिंग करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये है तो ये किस एंगल पे जा रहा है, कि ये अगर आप ये स्ट्रेट सरफेस है और आपने इसको किसी एंगल पे टेपर किया तो यू शुड नो द एंगल फॉर कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। देन देयर इज टेल स्टॉक, इस पे क्या कर सकते हो आप, एक्सटर्नल टेपरिंग कर सकते हो, आप इंटरनल टेपरिंग नहीं कर सकते, ओके। टेपर पर इंच और टेपर पर फुट, आपको कितना टेपर पर इंच करना है या कितना टेपर पर फुट करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। देन देयर इज टेपर अटैचमेंट, दिस इज द बेस्ट मेथड टू यूज टू डू टेपर टर्निंग, एंड इसके लिए भी आपको एंगल या तो टेपर पर इंच, इन दोनों में से कोई एक चीज पता होना जरूरी है। देन देयर इज टूल बिट, इसके लिए ये बहुत शॉर्ट सरफेस या शॉर्ट लेंथ के लिए टेपर करना हो तो, या किसी कम कम टेपरिंग करनी है, किसी कम एंगल पे टेपरिंग करनी है तो ये टूल बिट यूज होता है, और इसके लिए आपको टेपर एंगल चाहिए होता है, देन यू विल बी एबल टू डू टेपर टर्निंग थ्रू टूल बिट।
एंड देयर इज रीमर, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर ओनली इंटरनल टेपिंग, एंड इसके लिए आपको टेपर नंबर चाहिए होते हैं। दिस इज इंटरनल डायमीटर कटिंग ऑपरेशंस। अभी तक हम एक्सटर्नल डायमीटर कटिंग ऑपरेशन पढ़े थे, आज जिस तरह हमने फेसिंग देखी, हमने टर्निंग देखी, हमने ग्रूविंग देखी, हमने टेपर टर्निंग देखी। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डायमीटर। नाउ वी विल मूव टू द इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर में सबसे पहली चीज आती है ड्रिलिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ड्रिलिंग क्या है। ड्रिलिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग अ होल इन द वर्कपीस। अ ड्रिल्ड होल इज द लीस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ द होल मेड। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्रिलिंग से हमारा जो ऑपरेशन, उससे जो वर्कपीस या हमें जो फिनिश मिलती है, दैट इज नॉट गुड इनफ। इसलिए तो हम रीमर यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज रीमिंग। रीमिंग पे हम आते हैं इसीलिए क्योंकि आपके पास जो होल मिल है दैट इज नॉट एक्यूरेट इनफ। ओके, बोरिंग क्या है? बोरिंग इनलार्जेस द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग होल। लाइक आपने फॉर एग्जांपल ये इसमें होल किया हुआ है, आपने इसके डायमीटर को इंक्रीज करना है, तो यू विल डू व्हाट? Boring. Boring is the process of increasing internal diameter of a pre-existing hole. Like if you need to increase the diameter of an already existing hole, you will do the process boring. This process improves the accuracy of the hole and makes it more round. Okay, this is also used to increase the accuracy of the hole and makes it more round. Like for example, अब मैंने drilling किया तो मेरा hole जो मुझे मिलेगा वो इस तरह होगा। ठीक है, you see the rough surface. Okay, this does not do the justice of what I was trying to do. Anyways, जो हमारे पास hole हमें मिलेगा, that will be like this, that like not very accurate. For example, ये हमारे पास होल आ गया और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी रफ सरफेस है। अब जो आपने फॉर एग्जांपल इसके अंदर बोरिंग परफॉर्म की, तो बोरिंग से आपके पास तो इसका डायमीटर भी इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बिकम परफेक्टली राउंड। Okay, then there is reaming. Reaming smooths the internal surface of the hole and uses special multi-point tool to remove the metal from inside the hole. ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल एक होल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? दिस इज नॉट परफेक्टली राउंड। ये मैंने होल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रीमर मूव करूंगा, तो रीमर क्या करेगा? इसको एक तो इसके अंदर जो इसके ऊपर ना रीमर जो होता है ना, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। उसके ऊपर मैंने जिनको दिखाया है उनको तो पता है, उनके उसके ऊपर ना इस तरह के टीथ्स बने होते हैं ऑल इट्स सरफेस। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये इसको जब हम रीमर को, इस रीमर भी राउंड ही होता है, तो हम रीमर को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है कि उसकी जो इंटरनल डायमीटर होता है उसके ऊपर जो थोड़े थोड़े बुर्स होते हैं या इस तरह की थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती हैं, ये रिमूव करके एक परफेक्टली राउंड होल हमें मिल जाता है। यानी इन दी एंड हमें इस पे फिनिश मिल जाती है। ठीक है, देन देयर इज टैपिंग। टैपिंग मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ, कट इंटरनल थ्रेड्स इनटू अ ड्रिल्ड होल। आपने होल कर लिया, अब आपको इसके अंदर थ्रेड्स बनाने हैं। थ्रेड्स, अब आपने फॉर एग्जांपल इसमें कोई नट या बोल्ट इसके अंदर फिट करना है, तो आपको इसके अंदर थ्रेड्स चाहिए। थ्रेड्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे। और टैपिंग आप इंशाल्लाह फिटिंग शॉप में परफॉर्म भी करते हैं, और जो कर चुके हैं दे शुड नो बाय नाउ। हमारे पास 3 तरह के टैपर्स भी होते हैं, हैंड टैप्स भी होते हैं, वो उस पर डिटेल्स में हम फिटिंग शॉप में आएंगे। बट यू शुड नो कि टैपिंग से क्या करते हैं, हम एक ड्रिल होल के अंदर थ्रेड्स बनाते हैं। थ्रेड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीथ बनाने को हम थ्रेडिंग कहते हैं। अगर ये एक्सटर्नल है तो ये क्या है? एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। अगर आप ये किसी इंटरनल पार्ट पे बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरनल डायमीटर है और आप यहाँ पे टीथ बना रहे हो, देन दैट इज व्हाट? टैपिंग। देन देयर इज इंटरनल डायमीटर ग्रूविंग। अब मैं आपको ग्रूविंग पहले ही बताया था, हमने स्क्वायर ग्रूव भी चेक किए थे, हमने वी ग्रूव भी देखे थे और हमने राउंड ग्रूव भी देखे थे। ठीक है, स्क्वायर ग्रूव्स लाइक दिस। अब ये ग्रूव सिर्फ जरूरी नहीं है एक्सटर्नल सरफेस पे। एक्सटर्नल सरफेस का क्या मतलब है कि ये देखें जी, ये एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रूव बन गया। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये एक बार है, अब ये इसका इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, ये मैं एक पाइप फॉर एग्जांपल बना लें, तो ये पाइप का एक इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल डायमीटर है। और आप अब यहाँ पे इंटरनली अगर कोई ग्रूव बन जाए, लाइक इस तरह का ग्रूव बन जाए, देन दैट इज इंटरनल ग्रूविंग। ओके, सो ये ग्रूव जो है ये भी किसी ड्रिल्ड होल या किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम कर सकते हैं, देन दैट इज आल्सो इंटरनल ग्रूविंग। Now we'll move to cutting tools. The most common cutting tools are usually made up of high speed steels, HSS. अब हम जब भी आप यहाँ पे कटिंग टूल्स देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये हाई स्पीड स्टील से बने हुए हैं एंड कार्बाइड से बने हुए हैं। ठीक है, मोस्ट टूल्स मेड फ्रॉम दीज स्टील्स आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। हम लेथ में जो यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, दिस इज आल्सो सिंगल पॉइंट, दिस सिंगल पॉइंट। तो हम जितने भी लेथ में यूज करते हैं कटिंग टूल्स, वो ऑल आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, विच मींस दे कंटेन अ सिंगल कटिंग एज। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भी था कि सिंगल पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो एज होता है वो एक एज होता है जिससे ये कटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके,
And in next slide, there are most popular cutting tools used on lathe: hand ground HSS tools, which are brace tipped cutting tools. अब brace tipped cutting tools का क्या मतलब है कि जो उनकी जो tips हैं वो हम bracing से join करते हैं. Bracing and soldering are basically a joining process of different metals. It is basically famous because के दो different type of metals को ये combine कर देता है, but we will get to that in welding shop के bracing होता क्या है in detail. I have already told the students in welding shop what is bracing and what is soldering and what is the difference between them. But for the students in machine shop, you will learn what bracing is. Okay. These tools are made from inexpensive materials with the tip of more expensive cutting material braced onto the cutting end. Okay, अब इसमें important चीज क्या है कि these are made up of inexpensive material with the tip of more expensive cutting material. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है दिस इज एन इनएक्सपेंसिव मटेरियल, लेकिन ये जो कटिंग है यहाँ पे एक्सपेंसिव मटेरियल यूज कर दी और आपने इन दोनों को ज्वाइन कैसे किया है, ब्रेजिंग से. ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको. दिस इज बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कि आपका टूल है इस तरह का. ठीक है, आपने यहाँ तक टूल बना लिया और आगे आपका कटिंग टूल लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कटिंग एज और ये आपका टूल है. अब ये जो आपका टूल है ना, ये चीप है. ठीक है, ये जहाँ पे जिसने कटिंग परफॉर्म करनी है ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, अब आपने इनको ज्वाइन कैसे किया है, आपने इनको ज्वाइन किया है ब्रेजिंग से. इन दोनों को ज्वाइन कैसे किया है, ज्वाइन किया है ब्रेजिंग से. ब्रेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स. ओके. Okay, carbide tooling can cut many materials speed up to 4 times faster than HSS. अब carbide tooling यूज कर रहे हो तो आपके जो कटिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी by 4 times. And C2 usually for non-ferrous material and C6 usually used for tougher और machine ferrous material. अब C2 और C4 मैंने आपको बताया था ना, कार्बाइड के दो टाइप्स होती हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है C2 and C4. Let me remove all this thing first. Okay, you can see that these materials include most commonly C2 and C6 carbide. Like ये दो कार्बाइड्स हैं जो कि यूज होती हैं for these are the two types of carbide materials. और जो C2 होता है वो नॉन फेरस मेटल्स के लिए यूज होता है और C6 जो होता है वो टफर और मशीन फेरस मेटल्स के लिए यूज होता है. टू मशीन फेरस मेटल जिसमें ऑब्वियसली आयरन हो. Okay, this is basically single point cutting tool, or this cuts left to right and this cuts right to left. अब ये इंपॉर्टेंट किस तरह है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब भी कटिंग कर रहे होते हैं हम कौन से मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, हम ये वाले मटेरियल. हमारी जो लेथ मशीन है दैट इज लेफ्ट हैंड कटिंग लेथ मशीन, और ये लेफ्ट हैंड कटिंग मटेरियल जो है वो हमारे टूल्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं. अब इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपका कटिंग मटेरियल है और ये बाकी सारा टूल है. ठीक है, अब जो आपका वर्क पीस, इनके लिए आपका वर्क पीस जो होगा वो इस तरफ रोटेट इस तरफ पड़ा होगा, यानी यहाँ पे आपका चक होगा, यहाँ पे आपका वर्क पीस होगा और ये आपका कटिंग टूल होगा. तो ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका वर्क पीस रोटेट करेगा और आपके मटेरियल कट होंगे. इसके लिए आपका वर्क पीस इस तरह पड़ा होगा और आपका चक इस तरह पड़ा होगा. हमारे पास जो लेथ मशीन है वो इस डायरेक्शन में. ठीक है ना, इस तरह भी कटिंग हो सकती है, लेकिन इसके टूल्स अलहदा होते हैं और इसके टूल्स अलहदा होते हैं. ओके, सो यू हैव टू नो के डिफरेंट डायरेक्शन के लिए टूल्स भी डिफरेंट होते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू कटिंग टूल्स. अच्छा, आपको ये जो कटिंग इंसर्ट्स है दिस इज बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अगेन. अब होता क्या है कि अब जब आप एक टूल यूज करते हो कटिंग के लिए, देन वो टूल की एक लाइफ होती है, टूल की लाइफ डेड हो जाती है. और उस टूल, अगर फॉर एग्जांपल वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो वो एक ही मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, एक ही एज से कटिंग कर रहा होता है. अगर वो एज खराब हो गया देन योर टूल इज गॉन. बट कटिंग इंसर्ट्स का क्या फायदा है, दीज आर रिप्लेसेबल कटिंग एजेस. सही है, आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं. कटिंग इंसर्ट्स कम इन वैरायटी ऑफ शेप एज यू कैन सी बिलो. ठीक है, अब आपके पास ये जो चीजें हैं ना, दिस आर कटिंग इंसर्ट्स. आपने क्या किया, कटिंग इंसर्ट को यहाँ पे पुट किया, ये आपको एज प्रोवाइड हो गया, एज से आप कटिंग कर रहे हैं. जब ये एज खराब हो गया आपने इसको रोटेट किया, आपके पास ये एज आ गया, आपने इससे कटिंग कर ली. जब ये पूरा का पूरा खराब हुआ तो आपका टूल नहीं चेंज होगा, आपने सिर्फ इसको चेंज किया, यहाँ पे दोबारा रिप्लेस किया, आपका टूल गुड एज न्यू हो गया. ठीक है, इसलिए जो कटिंग इंसर्ट्स हैं these are used. Inserts are secured in a tool holder and rotated so there is a new cutting surface in the same location. ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल इससे कटिंग कर रहे हैं ना, अब ये जो सरफेस है ये इसकी सेफ है जो इसके अंदर फिट हुई हुई है. अब ये जैसे ही ये सरफेस रफ होने लग जाएगी या इसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी, हम इसको रोटेट करेंगे, हमारा टूल वहीं का वहीं है, हमारी टूल पोस्ट पे सेट है, ये रोटेट होगा, ये गुड एज न्यू हो जाएगा. जैसे ये खत्म होगा हमने इसको रिप्लेस करना है एक नए वाले से और हमारा टूल दोबारा नया हो जाएगा. सो कटिंग इंसर्ट्स भी आजकल यूज हो रहे हैं. These are the basic lathe terminologies. जिसका पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि इन दी एंड यही आपकी कटिंग कंडीशंस वगैरह को डिफाइन करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द स्पिंडल स्पीड.
स्पिंडल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई एम गोना रिपीट दैट। आपके पास ये हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के आगे स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर आपके पास है वो लगा होता है चक, और स्पिंडल क्या कर रही होती है, चक क्या कर रहा होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, एंड यू कैन यूज डू दिस विद द हेल्प ऑफ क्लच, ठीक है। और चक के अंदर क्या होता है, हमारा वर्क पीस जो है वो होल्ड हुआ होता है। ओके, तो स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल मूव कर रहा होता है चक को बट इन द एंगुलर डायरेक्शन, मतलब एक तो लीनियर डायरेक्शन होती है, एक होती है एंगुलर डायरेक्शन। रोटेशन जो होती है वो हमेशा एंगुलर डायरेक्शन होती है। तो स्पीड का क्या मतलब है कि ये कितनी एंगुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है ना, वो रोड के ऊपर एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड है इसकी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है कि उसने 10 किलोमीटर लीनियर डिस्टेंस मूव किया है इन व्हाट 1 आवर। इसी तरह हमारे पास एक एंगुलर स्पीड होती है, यानी इसने कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए 1 मिनट में, ठीक है। अब इस लीनियरली तो हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं ना, वो तो होता है हमारा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। जो वो होता है हमारा जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो हम मेजर करते हैं रेवोल्यूशंस में, रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर सेकंड एंड एवरीथिंग। तो स्पिंडल स्पीड जो मेजर होती है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट में होती है, कि 1 मिनट में स्पिंडल या चक जो है वो कितनी रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है, ठीक है। दैट इज स्पिंडल स्पीड, और चक रोटेट्स, ठीक है। देन देयर इज टूल स्पीड। टूल स्पीड क्या है, इंचेस पर मिनट। अब ये देखें लीनियर में आ गया, 1 मिनट में हाउ फास्ट द कैरेज इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, दैट इज टूल स्पीड। मैंने आपको बताया ना, कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है, और टूल पोस्ट के अंदर हमारा वो होता है, टूल होता है। तो अब टूल स्पीड क्या है कि आपने कैरेज जो है वो कैरेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि 2 एक्सेस में मूव करती है लेथ, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। वाइवा में कोई भी मुझे ये ना कहे सर लेथ जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव करती है, लेथ डज नॉट ऑपरेट इन वाई डायरेक्शन। लेथ का जो कैरेज है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और जो क्रॉस स्लाइड है वो वाई डायरेक्शन में मूव, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अच्छा, जो जेड डायरेक्शन है उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें आपका कैरेज मूव कर रहा होता है। कैरेज किस तरह मूव कर रहा होता है कि आप देखते हो कि 1 मिनट में ये जो टूल स्पीड है वो क्या है कि 1 मिनट में कैरेज ने कितने इंचेस या मिलीमीटर मूव किया, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, दैट इज योर टूल स्पीड। टूल क्योंकि टूल टूल पोस्ट पे लगा होता है, टूल पोस्ट किस पे लगा होता है, कैरेज पे। फीड रेट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। अब आप देखें, आपका यहाँ पे इंचेस या मिलीमीटर आउट के यहाँ पे आ गया, और आपकी जो रेवोल्यूशन थी वो उठ के यहाँ पे आ गई। अब आपको इस चीज से क्या पता चल रहा है कि ये जो फीड रेट है इट हैज बोथ इफेक्ट, स्पिंडल भी आ गया और आपका टूल भी आ गया। यानी क्या हो गया, आपके पास लीनियर डिस्टेंस भी आ गया और आपके पास एंगुलर डिस्टेंस भी आ गया। जब ये दोनों चीजें रिलेटिव हो जाएं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फीड रेट आ जाता है, रिलेटिव स्पीड ऑफ टूल एंड स्पिंडल, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर होता क्या है, बट यू शुड लर्न कि मिलीमीटर क्या है। अब मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन इसका यूनिट है। अब मिलीमीटर किस चीज पे आ रहा है, मिलीमीटर आ रहा है हमारा टूल का डिस्टेंस, और रेवोल्यूशन क्या आ रहा है, हमारा वर्क पीस का डिस्टेंस, क्योंकि वर्क पीस लगा हुआ है चक में, और चक लगा हुआ है स्पिंडल में। स्पिंडल पीछे गियर के साथ अटैच है जो कि हेड स्टॉक के अंदर है, हेड स्टॉक के साथ गियर बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर गियर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, इसलिए वो किस में मेजर हो रहे हैं, रेवोल्यूशन में। टूल पोस्ट किस पे लगा हुआ है, टूल पोस्ट पे लगा हुआ है, टूल पोस्ट किस पे लगा हुआ है, कैरेज पे लगा हुआ है। कैरेज जो है वो लीड स्क्रू पे मूव कर रहा है, और लीड स्क्रू किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, जो कि लीनियर डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कटिंग स्पीड पे। कटिंग स्पीड एंड फीड गवर्न्स द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड to machine the work and the quality of the surface finish. Cutting speed is the distance the work moves past the cutting tool in 1 minute measured on the circumference. Feed is the distance that the cutter moves during one revolution of the work. The cutting speeds can be increased by 50% if the coolant is used 300 to 400%, and if the cemented carbide cutting tool is used. अच्छा, cutting speed क्या होती है, distance the work moves past the cutting tool in 1 minute measured on the circumference। यानी आपका वर्क पीस है वो कटिंग टूल से 1 मिनट में कितना डिस्टेंस मेजर कर रहा है, जो कि जानी उसके सर्कमफेरेंस से कितना मटेरियल मूव हो रहा है, दैट इज कटिंग स्पीड। हाउएवर अगर आप फीड की बात करें, फीड क्या है, डिस्टेंस द कटर मूव्स ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्क। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्क पीस है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और फीड क्या है कि आपकी एक रेवोल्यूशन में आपके कटर, जब एक रेवोल्यूशन आपके वर्क पीस की हुई तो आपका कटर कितना जो है वो, मतलब उसने आपका कटर कितना मूव हुआ है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, कटर इस तरह मूव हो रहा होता है और आपका जो वर्क पीस है वो इस तरह मूव हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है इफ यू आर यूजिंग अ राइट हैंड लेथ मशीन, लेकिन हमारे केस में ऐसा होता है। अब एक रेवोल्यूशन में कटर ने ये डिस्टेंस कितना मेजर मूव किया, दैट इज फीड। ओके, और वो ये कह रहा है कि कटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सकती है 50% इफ द कूलेंट इज यूज। कूलेंट मैं आपको बता चुका हूँ, आप लेथ मशीन पे आपने देखा होगा कूलेंट यूज होता है। एंड 300 to 400 इफ अ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल इज यूज्ड। अगर आप एक सीमेंटेड कार्बाइड यूज कटिंग टूल यूज करें तो आपकी जो कटिंग स्पीड है वो 300 से 400% तक इंक्रीज हो जाती है। ओके, now this is depth of cut. Depth of cut refers to the distance the cutter has been fed into the work surface. अब ये आपकी फॉर एग्जांपल वर्क सरफेस है, ये आपने शुरू में जब आपने डेप्थ ऑफ कट देना होता है तो ये डिस्टेंस है, कटर हैज बीन फेड इनटू द वर्क्स। अब फॉर एग्जांपल ये आपका कटर है, ठीक है। अब इस कटर को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया शुरू में, तो वो इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल इस इतनी लेंथ मूव करता है, दैट इज योर डेप्थ ऑफ कट। ओके, आपके कटर ने आपके वर्क पीस को कितना पेनिट्रेट किया या कितना डिस्टेंस कवर किया उसके अंदर उसको पेनिट्रेट करते हुए, दैट इज योर डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट इज आल्सो वेरीज विद द कंडीशन ऑफ द लेथ मटेरियल हार्डनेस स्पीड फीड एंड द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव। आपकी लेथ कंडीशन कैसी है, आपका मटेरियल कितना हार्ड है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी फीड क्या है, और द अमाउंट ऑफ मटेरियल जो आपने रिमूव करना है, उन सारी चीजों की बेसिस पे आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो डिपेंड करता है। It must be remembered that the material removed around the periphery of the workpiece and for a given feed, the reduction in the diameter will be twice. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी मटेरियल रिमूव हो रहा था, पेरिफेरी बेसिकली सर्कमफेरेंस होती है, तो हमारा सबसे पहले जो मटेरियल मूव, क्योंकि वर्क पीस जो है वो राउंड होता है और वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, जो भी मटेरियल रिमूव होता है वो सरफेस सर्कमफेरेंस या पेरिफेरी से रिमूव हो रहा होता है। ओके, Okay, then there is a selection of cutting speeds and the feed. Factors that can affect the selection of cutting speeds and feed. ये कुछ factors हैं जिनकी basis पे हम cutting speed और feed को जो है वो select कर रहे होते हैं। आपका depth of cut क्या है, आपका shape of material क्या है, आप कौन सी kind of coolant use कर रहे हैं, आपकी lathe की condition क्या है, finished आपको कैसी desirable है, the kind of material being machined, जो आपका work piece है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, एंड द मटेरियल यूज्ड फॉर द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कार्बाइड का बना हुआ है या एचएसएस का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की बेसिस पे हम आपके जो कटिंग स्पीड्स हैं और फीड्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। दिस आर सम मटेरियल्स, और उनकी जो रफ कट है और जो उनका फिनिशिंग कट है उसकी फीड पर मिनट दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली कि अगर रफ कट आपको चाहिए तो आपका ये फीड पर मिनट होना चाहिए, या अगर फिनिशिंग कट चाहिए तो आपका ये फीड पर मिनट होना चाहिए। ओके, दिस इज जस्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर यू टू रीड कि कौन से मटेरियल के लिए आपको कितना कट चाहिए होता है जब आपने मशीनिंग करनी होती है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ चार्ट्स या टेबल्स जिसको हम मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। अब बेसिकली आ जाता है कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ वर्क या स्पिंडल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेस्ड ऑन द टेबल इन द प्रीवियस स्लाइड, आरपीएम फॉर अ गिवन मटेरियल कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द गिवन फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल हमें कटिंग स्पीड पता चल गई है, हमें डायमीटर पता चल गया, अब हमने चेक करना है कि आपकी स्पिंडल स्पीड क्या होनी चाहिए या उसका आरपीएम क्या होना चाहिए। तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, दैट कटिंग स्पीड इज इक्वल टू द आरपीएम मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, वेयर सीएस इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड, जो आपने कटिंग स्पीड रखनी है, डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ वर्क, जो आपका वर्क पीस है उसका डायमीटर है, एंड आरपीएम इज द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्क पीस है वो कितनी रेवोल्यूशंस कर रहा है एक मिनट में, दैट इज योर आरपीएम। ओके, ओके, फॉर कटिंग कंडीशंस जो आपके पास है, अब कटिंग कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें आप कटिंग कंडीशंस के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपकी कटिंग स्पीड भी आ जाती है, आपकी फीड भी आ जाती है, आपकी डेप्थ ऑफ कट भी आ जाती है। और कटिंग कंडीशंस क्या है, मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कितना मटेरियल, अब ये मिलीमीटर क्यूब या इंच क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम के यूनिट होता है मीटर क्यूब और इंच क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना, दिस इज वॉल्यूम। पर सेकंड का मतलब क्या है, रेट। जब भी किसी चीज के साथ टाइम आ जाए दैट बिकम्स रेट। तो वो कह रहा है मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कि कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है। अब मटेरियल रिमूव तो देखे ना, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर वर्कपीस है ना, अब इसके ऊपर से हर जगह से मटेरियल रिमूव हो रहा है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका पर सेकंड कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट। ओके, अब मटेरियल रिमूवल रेट किसके इक्वल है, आपकी कटिंग स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर दे फीड के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दे डेप्थ ऑफ कट के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल रिमूवल रेट। अब ये बताता भी हूँ कि कैसे बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो वो है ना कटिंग स्पीड, दैट इज इंच पर सेकंड, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें फीड के साथ, दैट इज इन इंच, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ
डेप्थ ऑफ कट के साथ दैट इज आल्सो इंच, ठीक है। अब ये तीनों इंचेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय सेकंड हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट, इंच क्यूब पर सेकंड। इंच क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, और सेकंड क्या है, टाइम है, तो ये क्या बन गया, मटेरियल रिमूवल रेट, जो कि इसका यूनिट है भी, ठीक है ना। दिस इज कटिंग कंडीशन। अगर आपने चेक करना है कि आपकी कटिंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए और आपका मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, तो आपने इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास मटेरियल रिमूवल रेट आ जाएगा। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन दैट यू डू बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ वर्क पीस ऑन लेथ मशीन। This is where this lecture ends. Hopefully आपको समझ आई हो, and thank you for listening, and if there are some questions you can always ask me. Allah Hafiz.